وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ العزیز ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 32 پیج اگلا سبق ہے۔ پہلے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں زبانی، پھر پڑھیں گے کتاب سے انشاءاللہ العزیز۔ اس سبق کی کچھ اصطلاحات تو ممکن ہے نئی ہوں، اس سبق کی کچھ ٹرمز نئی ہوں گی، لیکن جو اس سبق کا بنیادی تصور ہے، کانسیپٹ ہے، وہ نیا نہیں ہے۔ وہ کانسیپٹ آپ پہ پہلے سے کلیئر ہو چکا ہے۔ کیا؟ فعل ماضی سے تعلق رکھنے والے کچھ صیغے استعمال ہوتے ہیں فعالہ کے ردم پہ، کچھ فاعلہ کے ردم پہ، کچھ فاعلہ کے ردم پہ۔ اسی طرح فعل مضارع سے تعلق رکھنے والے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یفعلو کے ردم یا کہہ لیجئے یفعلو کے وزن پہ، کچھ استعمال ہوتے ہیں یفعلو کے وزن پہ، کچھ استعمال ہوتے ہیں یفعلو کے وزن پہ۔ ہر ایک کی ایک ایک مثال تو لازماً ہمارے ذہن میں محفوظ ہوگی۔ فعالہ جیسے فاتحہ، فاعلہ جیسے سامعہ، فاعلہ جیسے کاروما، یفعل جیسے یفتح، یفعل جیسے یضرب، یفعل جیسے ینصر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی مضارع کے گروپ کیسے بنائے جاتے ہیں، ماضی مضارع کے گروپ کیسے بنتے ہیں، فعل کی دنیا کیسے مارد وجود میں آتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم پھر پچھلے اسباق کی طرف جاتے ہیں۔ کیا پڑھ چکے ہیں ہم پچھلے اسباق میں کہ فعل کی دنیا کیسے مارد وجود میں آتی ہے؟ تین حرفوں کا ایک گروپ بنتا ہے۔ وہ گروپ کسی دروازے میں سے داخل ہو کے فعل کی دنیا میں اندر آتا ہے۔ ہر دروازے میں کوئی نہ کوئی ڈائی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ 3 حرفوں کے بننے والے گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کا مادہ۔ دروازے میں جو ڈائی لگی ہوتی ہے، جو سانچہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں سے گزر کر اس نے فعل کی دنیا میں اندر آنا ہے، اس سانچے کو، اس ڈائی کو کیا کہتے ہیں؟ وزن۔ اور اندر آ کے اس کی جو شکل بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ۔ آپ یوں تصور کیجئے کہ فعل کی ایک دنیا ہے، فعل کی ایک ریاست ہے، اسی کو سمجھ لیجئے یہ فعل کی ایک دنیا ہے۔ باہر ایک کھلا میدان ہے اور اتفاق سے ہے بھی۔ فعل کی دنیا کے 6 دروازے ہیں اور اتفاق سے اس کے بھی کتنے دروازے ہیں؟ 6 ہیں۔ ہر دروازے کے 2 حصے ہیں، ہر دروازے کے 2 پاس ہیں، 2 کواڑ ہیں، اور اتفاق سے ہیں بھی۔ ہر دروازے کے 2 کواڑ ہیں۔ اب آپ یوں تصور کیجئے کہ باہر کھلے میدان میں 3 حرفوں کے گروپ ترتیب پا رہے ہیں۔ ان 3 حرفوں کے گروپوں کو ماہرین صوتیات، آوازوں کے ماہرین سلپیں تقسیم کر رہے ہیں۔ کچھ کارڈ، اس طرح بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے ایئرپورٹ میں داخل ہونے کے لیے کہ اس مسافر نے فلاں دروازے میں سے داخل ہونا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے گیٹ نمبر 1 2 3 وغیرہ۔ باہر جو 3 حرفوں کے گروپ ہیں ان کو ماہرین صوتیات، آوازوں کے ماہرین سلپیں تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی مادے کے پاس یا کہہ لیجئے 3 حرفوں کے کسی گروپ کے پاس جو سلپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب رقم 1، گیٹ نمبر 1، دروازہ نمبر 1۔ کسی کے پاس جو سلپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب رقم 2، دروازہ نمبر 2، باب رقم 3، دروازہ نمبر 3، باب رقم 4، دروازہ نمبر 4۔ اب جس کے پاس جو سلپ ہے اس کے مطابق اس نے اپنے مخصوص دروازے میں سے داخل ہونا ہے۔ مثلا فاتحہ ایک مادہ ہے، اس کو جو سلپ ملی ہے، جو کارڈ ملا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب رقم 1، دروازہ نمبر 1۔ اب دروازہ نمبر 1
अभी हमने कहा हर दरवाजे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मखसूस होता है माजी के लिए, दूसरा मखसूस होता है मुजारे के लिए। क्या मतलब? दरवाजे के एक हिस्से में जो डाई लगी होती है वो क्या होती है? फेले माजी की, और दूसरे हिस्से में जो डाई होती है वो कौन सी होती है? फेले मुजारे की। अब फाताहा ये 3 हुरूफ का मादा फेले माजी वाली डाई में से गुजर कर जब फेल की दुनिया में अंदर आया तो क्या शक्ल बनी? फाताहा। यही 3 हुरूफ जब यफ़अलु, हाँ दरवाजा नंबर 1 में माजी और मुजारे दो डाइयां हैं। फेले माजी की डाई है फ़अला और फेले मुजारे की डाई क्या है? यफ़अलु। अब फाताहा 3 हरफों का ये ग्रुप इस दरवाजे यानी पहले दरवाजे में से दाखिल होकर फेल की दुनिया में अंदर आया तो उसके फेले माजी की क्या शक्ल बनी? फाताहा। और फेले मुदारे की डाई में से गुजर कर जब अंदर आया तो उसकी क्या शक्ल बनी? यफ्ताहु। फाताहा का माना उसने खोला और यफ्ताहु का माना वो खोलता है या खोलेगा। वादराबा, इसके पास जो स्लिप थी उसके ऊपर लिखा हुआ था बाब रकम इस्लाम, दरवाजा नंबर 2, वो दरवाजा नंबर 2 है। ये लाइन में लगा, उसमें से गुजरकर फेल की दुनिया में अंदर आया। अब इसके दरवाजे में जो डाई लगी हुई है फेले माजी की वो है फ़अला, और फेले मुदारे की क्या है? यफ़अलु। फेले माजी की डाई तो वही है जो पहले है, फेले मुदारे की बदल गई यफ़अलु। चुनाचे वाद राबा की क्या शक्ल बनी? माजी और मुदारे की डाइयों में से अंदर गुजर कर फेल की दुनिया में अंदर आने के बाद ज़ाराबा यज़रिबु, ज़ाराबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा। आवाजों के माहिरीन को जो अल्फाज का नशेबो फराज, जो लफ्जों का ज़ेरो बम मुतय्यन करते हैं, उन्हें यज़रबु की अदायगी पसंद नहीं आई। उन्हें कौन सी अदायगी पसंद आई? यज़रबु की बजाय यज़रिबु। तो जो अदायगी, जो तलफ़्फ़ुज़ उन्हें पसंद आया वो उन्होंने मुतय्यन कर दिया। हमें कोई, कल भी हमने कहा था, इतराज करने का हक या इख्तियार नहीं है। ज़ारबा यज़रिबु, नून स्वाद और रा के पास जो स्लिप थी इस मादे के पास फेल की दुनिया में अंदर आने के लिए, जो इसके पास इजाजतनामा था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? बाब रकम सलासा, दरवाजा नंबर 3। वो दरवाजा नंबर 3 पे गया, लाइन में लगा, दाखिल हुआ अंदर। फेले माजी की डाई थी उस दरवाजे में फ़अला और फेले मुदारे की थी यफ़अलु। तो क्या शक्ल बनेगी नून स्वाद रा की इस दरवाजे में से गुजरने के बाद? नासारा यनसुरु, नासारा उसने मदद की, यनसुरु वो मदद करता है या करेगा। इसी तरह सीन मीम ऐन के पास जो इजाजतनामा है, जो स्लिप है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बाब रकम अरबा, दरवाजा नंबर 4 ये है। इसमें से अब उसने, हमने कहा 6 दरवाजे हैं इसके भी, इसमें से सीन मीम ऐन जब दाखिल हुआ ये ग्रुप तो क्या शक्ल बनी? जबकि फेले माजी वाले हिस्से में डाई लगी हुई थी फ़ाइला और फेले मुदारे वाले हिस्से में कौन सी डाई लगी हुई थी? यफ़अलु। तो क्या शक्ल बनी? सामिआ यस्मउ। इन मिसालों पे गौर करने के बाद एक नतीजा आप खुद अखज़ कर सकते हैं। क्या? असल में अगर किसी को नहीं भी पता, किसी को नहीं भी पता कि ये फेल जो हमारे सामने है किस दरवाजे में से गुजर कर आया है, मसलन माजी मुदारे का ग्रुप है जालासा यजलिसु, आप बताइए जालासा यजलिसु माजी मुदारे का ये ग्रुप कौन से दरवाजे में से गुजर कर अंदर आया होगा? दूसरे दरवाजे में से। कैसे? जालासा यजलिसु, जालासा में आखिरी से पहले हर्फ पे क्या है? ज़बर, और यजलिसु में आखिरी से पहले हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर। आपने और किसी हर्फ को नहीं देखना, आपकी सारी तवज्जो, आपकी निगाह किस पे मरकूज रहनी चाहिए? आखिरी से पहले हर्फ पे, फेले माजी में भी और फेले मुदारे में भी। उसको देख लीजिए, निशान लगा लीजिए, यहां ज़बर है, यहां ज़ेर है। ज़बर जमा ज़ेर कौन से दरवाजे में है? सेकंड, 2। अब देख लीजिए यहां क्या है? ज़बर जमा ज़बर, यानी
फेल माजी में सेकंड लास्ट हर्फ पे या कह लीजिए ऐन कलमा पे ज़बर है, और फेल मुजारे में उसी हर्फ पे, फेल मुजारे में भी उसी हर्फ पे क्या है, ज़बर है। ज़रबा यज़रिबु फेल माजी में ज़बर है और फेल मुजारे में उसी हर्फ के नीचे क्या है, ज़ेर है। नसर यनसुरु में क्या है, इसका ग्रुप कैसे बनता है? फेल माजी में ज़बर, आखिरी से पहला हर्फ है कौन सा नसरा में, स्वाद। यनसुरु में कौन सा है, स्वाद। यहां स्वाद के ऊपर ज़बर है, यहां स्वाद के ऊपर पेश है, तो क्या ग्रुप बना, ज़बर जमा पेश। और यहां क्या ग्रुप बना है, समिअ यस्माउ में ज़ेर जमा ज़बर। अब बताइए माजी मुदारे का ये ग्रुप है, शारिबा यशरबु, शारिबा यशरबु पीना। बताइए ये कौन से दरवाजे में से गुजर कर अंदर आया होगा, चौथे दरवाजे में से, सामिआ यस्माउ। लेकिन अभी हमने कहा अगर किसी को नहीं भी पता कि शारिबा यशरबु कौन से दरवाजे में से गुजर कर अंदर आया होगा, तो तर्जुमा करने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तर्जुमा आप कर सकेंगे आसानी के साथ, शारिबा उसने पिया, यशरबु वो पीता है या पिएगा। अगर तर्जुमा करने में इस सारे सबक का कोई असर नहीं है तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? असल में बाज़ तलबा और तालिबात की आदत होती है बाल की खाल उतारना, किसी लफ्ज की साइंस मालूम करना। होते हैं ऐसे ज़हीन तलबा। कुछ तलबा को किससे गर्ज होती है, उन्होंने कैलकुलेटर लिया और जमा ज़रब तफरीक करके फारिग हो गए। कुछ तलबा और तालिबात क्या करते हैं, चाहिए 2 ज़रबे 2 4, ये कैसे आ गया, अब वो साइंस लड़ाना शुरू कर देते हैं। अब अरबी ग्रामर में भी कुछ तलबा और तालिबात उस वक्त तक मुतमिन नहीं होते जब तक किसी लफ्ज की मुकम्मल साइंस का उन्हें पता न चल जाए। एक तो ये है कि शारिबा उसने पिया, यशरब वो पीता है या पिएगा, और एक क्या है कि जनाब शारिबा यशरब ये दोनों अल्फाज मारज़ वजूद में कैसे आए, इन अल्फाज की साइंस मालूम करना। तो उन्हें उस वक्त तक इत्मीनान नहीं होगा जब तक उन्हें ये ना बता दिया जाए कि जनाब सैकड़ों साल पहले शीन रा बा ये 3 हरूफ इकट्ठे हुए थे, इन 3 हरफों का एक ग्रुप बना था। माहिरीन सौतियात ने इन्हें जो इजाजतनामा दिया था फेल की दुनिया में अंदर आने का, उसके ऊपर लिखा हुआ था बाब रकम अरबा, दरवाजा नंबर 4। ये उस दरवाजे में से, ये तीनों हरूफ उस दरवाजे में से दाखिल हुए थे। उस दरवाजे में जो 2 डाइयां लगी हुई थी वो कौन कौन सी थी, फाइला या फ़अलु। चुनाचे शीन रा बा की उस चौथे दरवाजे में से गुजर कर जो शक्ल बनी थी वो क्या थी, शारिबा या शरबु। फिर उन्हें इत्मीनान हो जाएगा। तो ये सबक किन के लिए है कि जो हर लफ्ज की साइंस मालूम करना चाहते हैं, वरना ये सबक तमाम तलबा और तालिबात की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ तर्जुमा करना चाहते हों वो इस सबक को ना भी पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि नहीं जी हमें तो पता चलना चाहिए ये लफ्ज मारज़ वजूद में कैसे आया था, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो फिर इस सबक पे पूरी तवज्जो दीजिए। 4 दरवाजे हैं, बाकी 2 दरवाजे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वो कल। इस सबक को यहीं से लेकर चलेंगे। फिर सुन लीजिए इस सबक का खुलासा कि 3 हरूफ इकट्ठे होते हैं, 3 हरूफ का एक ग्रुप बनता है, प्लीज आवाज नहीं आए, 3 हरफों का एक ग्रुप बनता है। उनको एक स्लिप दी जाती है 3 हरफों के ग्रुप को। उस स्लिप पे लिखा होता है दरवाजा नंबर 1 2 3 4। 3 हरफों का वो ग्रुप उस दरवाजे के पीछे लाइन में लग के फेल की दुनिया में अंदर आने के लिए दरवाजे में से दाखिल होता है। लेकिन दरवाजे में से दाखिल होना आसान नहीं। दरवाजे में 2 कवाड़ लगे होते हैं, उस मादे को बारी बारी दाखिल होना पड़ता है उन दोनों हिस्सों में से, और हर कवाड़ में एक डाई लगी होती है, एक सांचा फिट होता है। उसमें से गुजर कर जब वो अंदर आता है तो जो उसकी शक्ल बनती है
उसको क्या कहते हैं? या फेल माजी और या फेल मुदारे। फेल माजी की अलग डाई होती है, फेल मुदारे की अलग डाई होती है। तो फेलों की इस दुनिया के कुल दरवाजे कितने हैं? 6। बिल्कुल हमने कहा हमारे इस हॉल की तरह। बाहर एक खुला मैदान है, यहां भी है। खुले मैदान में वो ग्रुप तरतीब पा रहे होते हैं, बारी बारी हर दरवाजे में से गुजर कर अंदर आ रहे होते हैं, और यूं फेल की दुनिया मारदे वजूद में आती चली जाती है। इस सबक को हमने कहा यहीं से लेकर चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे कल। यहां तक हमने पढ़ा। निकालिए, यहां तक हमने पढ़ा। निकालिए। थोड़ी सी मश्क हम करते हैं। निकालिए सफा नंबर 32। सफा नंबर 32 बताइए। सबसे पहले नीचे मश्क है सफा नंबर 32 पे, आकाला या अकुलू। नीचे मश्क है, सबसे पहले वहां लिखा हुआ है आकाला या अकुलू। ये कैसे मारदे वजूद में आया था? कुछ मैं बता देता हूं, कुछ आप जवाब दे दीजिए। हमजा, काफ, लाम, ये 3 हुरूफ सैकड़ों साल पहले इकट्ठे हुए थे। इनका एक ग्रुप बना था जिसको फेल का मादा कहा गया। फेल का वो मादा किसी दरवाजे में से गुजर कर फेल की दुनिया में अंदर आया था। वो दरवाजा कौन सा था? वो आप बता दीजिए। दरवाजा नंबर 3। कैसे पता चला? हमने कहा आपकी तवज्जो किस पे रहनी चाहिए? फेल माजी में भी सेकंड लास्ट हर्फ पे और फेल मुदारे में भी सेकंड लास्ट हर्फ पे। फेल माजी में सेकंड लास्ट हर्फ पे क्या है? जबर। देख लीजिए फेल मुदारे में सेकंड लास्ट हर्फ पे क्या है? पेश। तो क्या ग्रुप बना? जबर जमा पेश। जबर जमा पेश किस दरवाजे का है? ये ग्रुप किस दरवाजे का है? दरवाजा नंबर 3 का। तो जिस दरवाजे में से नून स्वाद रा, जिस दरवाजे में से नून स्वाद रा का मादा दाखिल हुआ था और नसर यनसुरु की शक्ल बनी थी, उसी दरवाजे में से हमजा काफ लाम का मादा दाखिल हुआ था और शक्ल क्या बनी थी? आकाला याकुल। शारी भैया शराबू बताइए। शीन रा बा, इसके ये 3 हुरूफ मादे के हैं। फेल मादी के 3 हुरूफ मादे के। मादे के ये 3 हुरूफ किस दरवाजे में से दाखिल होकर अंदर आए होंगे? चौथे दरवाजे में से। बाब, रकम और बा। जालासा यजलिसु, जालासा में सेकंड लास्ट हर्फ पे जबर है और यजलिसु में जेर है। जबर जमा जेर कौन सा दरवाजा बना? दूसरा। सहारा या सहारू जादू करना, पहला। जबर जमा जबर। काता यकताओ काटना, पहला। जबर जमा जबर। कासारा यकसिरु तोड़ना, कासारा उसने तोड़ा, यकसिर वो तोड़ता है, ये तोड़ेगा। क्या है यहाँ? जबर जमा जेर। आपकी तवज्जो किस पे रहनी चाहिए? फेल मादी में भी आखिरी से पहले हरफ पे और फेल मुदारे में भी आखिरी से पहले हरफ पे। कासारा यकसिरु जबर जमा जेर। हादामा यहदिमो गिराना, जबर जमा जेर कौन सा दरवाजा है? दूसरा। आखिरी बता दीजिए। ज़ाकारा यज़कुरु, जिक्र करना, याद करना, किसी भूली हुई बात को दोबारा ज़हन में लाना। तीसरा। ज़ाकारा यज़कुरु नसारा यनसुरु, इसका वही दरवाजा है जो नसारा यनसुरु का है। हमने कहा बाकी इंशाअल्लाह कल। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।